Hey you all, I hope you all are good and safe. As you all know, this lockdown has hit us very hard. So me and my team, that is the PiFail, has taken an initiative to provide you all the basic understandings regarding the concepts of the 10th class NCERT. I'm beginning with a video through the topic of an introduction to trigonometry. It will be very fun, facting and interesting. And if you like my video, give a big thumbs up to it. Also subscribe my channel and also press the bell icon so you will never miss any update. So शुरू करते हैं. So in this particular video, I will be discussing about the three terms, that is the first, the term trigonometry, second, trigonometric ratios, and the third one, that is the trigonometric identities. So, taking the first heading, what in trigonometry actually means, it's nothing but as the term suggests, trigonometry is a Greek origin word. ठीक है, trigonometry जो है Greek word है, means tri means three, gon means sides, and metron means measurement. So you can say that the trigonometry is nothing but the measurements of the three sides of a triangle, of a particularly a right angle triangle. It's called the trigonometry, or in general we can say a trigonometry is a branch of mathematics in which we deal about the measurements of the certain angles and the sides of a particular right angle triangle. ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल एक डेफिनेशन बताइएगा और कुछ नहीं. तो हम बढ़ता अपने चलते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है, ये हम इसमें देखेंगे. सो एज ए टर्म itself suggests it's a ratio of something to. रेशियो हमेशा दो चीज के लिए देखी जाती है ना, लाइक ऐसे. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम कैसे डील कर सकते हैं? The ratio of the two sides of a particular right angle triangle is known as the trigonometric ratios. Suppose we have a triangle, right angle at B. So in order to calculate out the measurements of the two sides of a triangle, we take the trigonometric ratios. So if we have to take the ratio of the BC and AC, so that will be called the trigonometric ratios. So हम trigonometric ratios को निकालते किस टर्म्स में? इसके कुछ है फंडे, क्या है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट. और इनको हम जो सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं साइन, कॉस और टेंजेंट, टेन. ठीक है, बेसिकली तो ये तीन ही है, और जो बाकी के तीन है वो इनके इनवर्स हैं, और इन कह सकते हैं इनके रेसिप्रोकल है. लाइक कोसेक, जिसको हम कोसेकेंड बोलते हैं, सेक, या जिसको हम सेकेंड बोलते हैं, या टेंजेंट का कोटेंजेंट, या जिसको हम कॉट बोलते हैं. तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली इन फॉर्म्स में निकालते हैं. लाइक you are familiar with the saying that the sin A, cosine A, or you can say the sin A, cos A. तो उसका बेसिकली मतलब क्या होता है? ऐसा एक बात को, जब भी हम इसको पढ़ते हैं sin A, so is it mean the product of sin and the angle A? Well, it's actually not. It is literally termed as the sine of angle A. Sine of angle A, or
if you take the particular angle, then it will be sine of angle B, sine of angle C, and so on. ठीक है. And similarly the case of the cosine and tangent. तो इसको जो हम पढ़ते हैं कि साइन है वो प्रोडक्ट ऑफ साइन इंटू ए नहीं होता, वो होता है साइन ऑफ एंगल ए. ठीक है. अब हम साइन क्या ये देखते हैं. एक बात हो, हमको पता है फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज थ्योरम, ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. इसके परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर इधर से भी अगर एक परपेंडिकुलर है तो दूसरा बेस होगा. लाइक हमने इसको परपेंडिकुलर माना तो ये हमारा बेस हो जाएगा. तो हाउ टू कैलकुलेट द साइन. साइन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. आई एम टेकिंग द साइन ए. फॉर कैलकुलेटिंग द साइन ए द फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. on hypotenuse. What will the perpendicular, that is the AB, and hypotenuse is AC. Similarly for the cosine, it will be base upon the hypotenuse. Base is BC and hypotenuse is AC. ठीक है. तो कुछ नहीं है, सिंपल है. साइन और कोस का तो हमको समझ में आ गया, बट जब हम कोट टेन की बात करते हैं तो टेन को हम साइन ए अपॉन कोस से लिख देते हैं. पर ये आया कहाँ से, इसको हम थोड़ा देखते हैं. लाइक हम टेन को क्या लिखते हैं. टेन हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. परपेंडिकुलर क्या हुआ, इसमें ए भी हुआ. ठीक है. और बेस हमारा क्या हुआ, BC. And if I divide whole the term by AC, that is AB by AC divided by BC by AC, then it will become AB upon AC. क्या बन गया, sin A. And BC upon AC क्या बन गया, cos A. तो tan की जो फॉर्म बनती है वो हमारी sin A upon cos A बनती है. And similar with the case of the cosine A, cosec A, sec A and cot A. ठीक है. ऐसे हम निकाल देते हैं. जैसे हमको cot का निकालना पड़ा, cot A. तो मैंने बताया वो क्या होता है, 1/tan A होता है, या हम कह सकते हैं उसको cos A upon sin A. तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसके थ्रू से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मेजरमेंट करते हैं उसकी साइड्स को. अब हम देखते क्या है. एक प्रॉपर्टी देखते हैं कि इफ यू टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल with the points P and Q on AC and BC respectively, हमारा 90 डिग्री हो गया. And we have to calculate out the trigonometric ratios of the angle A with respect to the triangle PQC and with the triangle AB and C. तो इसमें हम क्या देखेंगे कि अगर हम कोई भी ट्रायंगल को एनलार्ज कर दे या मिला दें या कम कर दें तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता. सो हम करने क्या वाले हैं, ये भी 90 डिग्री होगा, थोड़ा लग नहीं रहा, बना देते हैं इसको. सो ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQC by angle property. ये कैसे हुआ, देखो 90-90 हो गया और एंगल सी दोनों में कॉमन हो गया, तो एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, AB अपॉन BC, AC अपॉन BC एंड BC अपॉन QC बाय CPCT ना. ये तो 9th का कंसेप्ट है, बिल्कुल सीधा कर दिया. अब हमको क्या करना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC
अब ABC में हम क्या देखते हैं, इसमें हम साइन लगाते हैं, साइन C, वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू द एंगल C ना, तो इसी वजह से हमने साइन C लिया है। साइन C का हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर इसमें क्या हुआ, परपेंडिकुलर इसमें PQ हुआ, हाइपोटेनस इज PC, PQ upon PC, that will be the first equation. And in right angle triangle PQC, sin C will be equal to हमने ABC ट्राइंगल लिया है ना बड़े वाला, तो उसका हमको देखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC। और अब हम इधर देखते हैं तो इसके लिए होगा PQ अपॉन PC, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है एंड वी हैव टू कैलकुलेट आउट द रिमेनिंग वंस, तो हम उसको कैसे करेंगे। लाइक ABC भी है राइट एंगल ट्रायंगल एट B, hypotenuse is 5 and the perpendicular is 4, ठीक है, and we have to calculate out the theta or you can say the angle C. So sin theta, as we know, 4/5 it is given. In order to calculate out the cos, tan and so on, what we have to do is to apply the Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, AC square is equals to AB square plus BC square. AC is 25, AB is 16 and BC we have to calculate, then BC will be 3, ठीक है, BC हमारा 3 हो गया। So अब हमको दो रेशो से तीसरी रेशो मिल गई है, तो हम उससे कोस भी निकाल सकते हैं, कॉट भी निकाल सकते हैं और tan भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा। एक करके दिखा देता हूँ फिर भी। Like you have to calculate of the sec theta, and what is sec theta? That is 1 upon cos theta, or you can say that is hypotenuse upon base. And what is the hypotenuse? That is 5 and base is 3. That will be the obtained sec theta. एक टेबल है जिसमें हमको कुछ डिग्रीज में साइन और कोस और tan की वैल्यूज दी जाती हैं, तो आई विल शो। साइन कोस tan एंड सो ऑन। उनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमको तीन ये याद हैं, उनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई विल शो यू हाउ। दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमारे सिलेबस में 90 डिग्री तक है, पर मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जाकर कि क्या नाम है, अगर हमको 90 डिग्री से अबोव जाना पड़े तो हम उसको कैसे निकालते हैं, क्योंकि कुछ क्यूरियस स्टूडेंट्स होते हैं जिनके दिमाग में कुछ डाउट चलते रहते हैं, इसी वजह से हम देखते हैं उसको। तो फॉर साइन 0 डिग्री इट विल बी 0, 1/2, 1/√2, 1/√3/2 and it's 1. For cos the digits will be reversed, that is 1, √3/2, 1/√2, 1/2 and 0. And when we have to calculate out the tan, it's simply the cos, sin upon cos, then 0 upon 1 it will be 0, 1/2 upon 3/2 it will be 1 upon √3, it will be 1, it will be √3 and it will be infinite. Why infinite? Then because tan 90 we have to calculate, it will be sin 90 degree upon
cos 90 degree, and if 1 upon 0, it simply means it's infinite. ठीक है, ठीक है। अब तो ये हमने देख लिया कि ऐसे ऐसे होना है, पर अगर उनको कोसेक आ गया, वहाँ पर सेक आ गया या कोट आ गया 1 मार्क में, तो हम उसको कैसे करेंगे? लाइक इन द एग्जामिनेशन वी हैव बीन आस्क्ड कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोसेक 45 डिग्री। एज वी नो कोसेक थीटा is 1 upon sin theta. So for cosec 45 degree, it will be sin of 45 degree. तो sin 45 कितना है हमारा? 1 by root 2, 1 upon 1 by root 2 हो जाएगा। तो ये ऊपर जाके root 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप निकाल कर हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमको इतना ज़्यादा मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये 3 साइन, कोस और tan याद कर लेते हैं तो दैट विल बी मोर सफिशिएंट। तो मैं बता रहा था कि हम नॉर्मली अप टू द 10th क्लास वी टेक इट ओनली टू द 90 डिग्री। ठीक है, और अगर हमको 90 डिग्री से ऊपर जाना पड़े तो हम उसको कैसे करते हैं ये भी हम देख लेते हैं, सिखा देता हूँ। वैसे इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दोज हु वांट टू स्किप दे कैन स्किप। कुछ नहीं करना, हमको एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है। कार्टेशियन प्लेन एज यू ऑल नो इट्स ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स। आई हैव डिनोट 1, 0 that is positive 0, 1 y and x axis, x dash y dash. It will be -1, 0 and it will be 0, -1. As you all know, the hypotenuse remains to be always positive. So whatever be the in quadrant, it will always be in positive. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेंट में डिनोट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमको पता है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैंने जो अभी बताया कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो हमने याद किए हैं उनको डिग्री फॉर्म में, वो 0 से 90 था। तो वो मतलब इतने था। ठीक है, तो हमने देखा क्या, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और मैंने बताया कि हाइपोटेनस ऑलवेज रिमेन्स टू बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है। तो इसी वजह से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर वैल्यू साइन की, कोसाइन की, टेंजेंट की, कोसेकेंट की, सेकेंड की या कोटेंजेंट की, सबकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। सो ऑल पॉजिटिव, whatever be the sine, cosine and tan, it will always be remain positive. But in the case of the second quadrant में क्या हुआ, आपको पता है अगर हम ये बेसिकली मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। अब हमको ये ट्राइंगल देखना है सेकंड क्वाड्रेंट का इधर की साइड, कि हमको पता है कि मैंने बताया कि हाइपोटेनस रिमेन्स टू बी पॉजिटिव, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है। पर इस साइड में हुआ क्या, अब की बार हमको जो हमारा बेस हो गया वो नेगेटिव हो गया। अब हमको पता है कि जो बेस में जिसमें बेस आएगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। लाइक इन साइन वी आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देन इट विल रिमेन पॉजिटिव। कॉस में हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सिमिलर विद द केस ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट में भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बेस नेगेटिव हो गया तो वैल्यू टेंजेंट की भी नेगेटिव हो जाएगी। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक टू बी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हाइपोटेनियस रिमेन्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, हमारे पास परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हो गया और हमारा बेस भी नेगेटिव हो गया। तो इस केस में जिसमें भी हमारा परपेंडिकुलर और बेस दोनों साथ आता है, वो माइनस से माइनस करके पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो केवल tan और cot में आता है। तो इसको छोड़कर सब नेगेटिव होंगे और केवल tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होगी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो हम देखते क्या है कि ये 90 है, ये 80 हो जाएगा, 180, और ये इसको मिलाते 270 हो जाएगा। सो if we have been given that what will the value of 269 degree, so 269 degree is in the third quadrant, and third quadrant the value will be positive. So whatever is the value, it remains to be positive. And if we have to calculate the tan, sine या
cos 269 degree, as in the third quadrant only the tan cot is always positive, others has to be negative. So whatever be the value will be in negative. And now coming to the next topic. In this triangle we have the you can say the perpendicular or the base negative. Perpendicular is positive. If I take the perpendicular at this side, the perpendicular, अगर हम हाइट परपेंडिकुलर को हम पॉजिटिव लेते हैं तो बेस इसका नेगेटिव हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो रिमेन्स पॉजिटिव रहेगी. तो इसमें क्या हुआ, हमको पता है कि परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है. तो जिसमें हमारा परपेंडिकुलर, सॉरी मैंने इसको हमेशा परपेंडिकुलर लिया है क्योंकि हमने इसको परपेंडिकुलर लिया, तो ये भी परपेंडिकुलर हुआ ना, ये हुआ हमारा बेस. तो इसमें हमको पता लगता है कि बेस परपेंडिकुलर हमारा नेगेटिव है और बेस पॉजिटिव है. तो जिसमें भी परपेंडिकुलर आ रहा होगा, परपेंडिकुलर लाइक साइन में आता है, टेंजेंट में आता है, वो सारे उन सब की वैल्यूज नेगेटिव आएगी. पर हमारे पास जो कोस होता है, कोस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस भी पॉजिटिव है हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो इसमें कोस पॉजिटिव हो जाएगा. हम सिंपल याद कर सकते हैं ASTC मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव एंड द कन्वर्स ऑफ साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव एंड द कन्वर्स ऑफ tan पॉजिटिव दैट इज द कोटेंजेंट एंड द cos पॉजिटिव. ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि ऐसा क्या कैसे कैसे हम पॉजिटिव करते हैं इसको, किसमें पॉजिटिव रहने वाला है और किसमें नेगेटिव रहने वाला है. इफ आई से कि साइन 90 minus theta, whatever be the value of theta, if the value is in the first quadrant 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम हुआ तो इसी क्वाड्रेंट में रहने वाला है. ठीक है, तो जो भी कुछ वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी. ठीक है, और अगर मैं इसमें बोल देता था कि इफ द वैल्यू इज 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री क्रॉस हो किधर आ गया, तो उसका मतलब क्या हुआ, तो साइन की वैल्यू जो हमारी चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, आगे समझ. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री. पता नहीं बच्चे से क्यों डरते हैं, तो बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा कंसेप्ट है. Now coming to the third topic, that is the trigonometric identities. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास बेसिकली 3 हैं और उनको प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो कैसे कैसे हुई हैं. लाइक साइन स्क्वायर x और यू कैन से द साइन स्क्वायर थीटा plus cos square theta, it's 1, that is the first trigonometric identity. Second one is 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. Or the third one is n plus cot square theta, that will be the cosec square theta. सो ये कभी कभी पूछने जाता है कि इन आइडेंटिटी को उसको प्रूव किया जाए. तो इन ऑर्डर टू प्रूव दैम आई हैव टेकन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी. ठीक है, अब हमको करना क्या है, एक कोई भी एंगल ले लेते हैं. लेट्स सपोज करते हैं हमने सी ले लिया. इट इज द हाइपोटेन्यूज, इट्स द परपेंडिकुलर एंड इट्स द बेस. सो from Pythagoras theorem, hypotenuse is equals to perpendicular plus base. The hypotenuse of the angle C, that will be AC, AB and BC. ठीक है, हमको करना क्या है, इन ऑर्डर टू प्रूव द फर्स्ट आइडेंटिटी हमको इसको साइन और कोस में लेके आना है. ठीक है, हमारे पास साइन में इसको लाने के लिए लाइक
हमको इधर तो 1 चाहिए किसी भी हालत में, इधर हमको साइन और कोसाइन बनाना है। तो अगर हम इधर क्या ला सकते हैं, अगर हमको इधर 1 लाना है तो हमको करना क्या होगा, अगर हम इसको AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो आधा काम तो हमारा हो गया, 1 तो आ गया। अब हमने इधर AC स्क्वायर से डिवाइड किया तो इधर भी AC स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। AC स्क्वायर 1, AB upon AC, let the AB upon AC is sin C के कंटेक्स्ट में लिया है तो हम sin C ले लेते हैं इधर, sin C स्क्वायर, या वी कैन से द sin थीटा स्क्वायर, और BC upon AC becomes the cos स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी हमारी प्रूव हो गई। कमिंग टू द सेकेंड वन, हमको करना क्या है, सिंपल वही लिखते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमको करना क्या है, हमको इधर की साइड सेक बनाना है, ठीक है। सेक में हमको पता है कि सेक कितना होता है, 1 अपॉन cos होता है, और cos की वैल्यू हमको पता है BC अपॉन AC होती है, पर हमको AC चाहिए, ठीक है। AC हमारे पास है, अगर हमको इसको BC से डिवाइड कर दें, सिंपल ये तो सेक स्क्वायर बन गया, सेक स्क्वायर थीटा बन गया, क्योंकि हम देखें सेक थीटा AC अपॉन BC हुआ नहीं हुआ, that is the hypotenuse upon base, converse of या इनवर्स ऑफ cos थीटा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सेक थीटा, तो इधर बन ही गया। अब हमको BC स्क्वायर से सारे को डिवाइड कर देंगे, BC स्क्वायर पर 1, that will be sec स्क्वायर थीटा, AB upon BC, that is AB upon BC simply tan theta, और the square is given, that will become the tan square theta plus 1। सेकेंड आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। Now coming to the last one, simply AC square is equals to AB square plus BC square। अब हमको क्या चाहिए, हमको कोसेक बनाना है। कोसेक में हमको क्या होता है वो पता है, हमको 1 अपॉन साइन ए होता है। साइन ए में हमको अगर ऊपर की साइड हमारा परपेंडिकुलर आता है तो कोसेक में हमारा ऊपर की साइड हमको हाइपोटेन्यूस ही होगा। हाइपोटेन्यूस हमारे पास ऑलरेडी है इधर की साइड, अगर हमको इसके नीचे परपेंडिकुलर ला दें, परपेंडिकुलर क्या है AB का स्क्वायर अगर हम ला दें इसमें, तो सिंपल AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ये तो सिंपल कोसेक बन गया। अब हमको इधर भी AB से करना है, AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल, ये तो हमारा बन गया कोसेक स्क्वायर 1 प्लस एंड BC अपॉन AB अपॉन BC हमको पता है कि वो tan के लिए फॉर्मूला होता है, इनवर्स ऑफ tan वो क्या होता है, वो कोट होता है, तो हम इसको कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये हमारी 3 की 3 आइडेंटिटीज प्रूव हो गई। So in the previous section of this video I was telling you about that the values for all the trigonometric ratios tending from theta, that is from 0 degree to 90 degree is 0 to 1। like बात ये है कि अगर हम कुछ भी वैल्यूज ले देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो वो जो वैल्यू है हम 0 से 1 के बीच में रहती है, ठीक है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो थीटा है वो 0 से 1 के बीच में रहता है। like if we take the case of sin 45 degree is 1/√2, तो जो भी कोई वैल्यू आएगी लाइक 1.414 होती है √2 की वैल्यू, तो जो भी कुछ वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी रहेगी और 1 से कम रहेगी। सिमिलर विद द केस ऑफ द cos like I take cos 45, it becomes the cos 45 it become 0 1/√2 0 3/√2 1/√2 ही रहने वाली है। सिमिलर रहते हैं sin 45 और cos 45 सेम रहता है, तो इन दोनों की जो वैल्यूज रहती हैं वो 0 से 1 के बीच में रही है, राइट ना। तो थीटा जो है
वो 0 से 1 के बीच में रहा है। ये एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर साइन की और कोस की वैल्यूज जो होती है फॉर एक्यूट एंगल्स, स्पेसिफिकली फॉर एक्यूट एंगल्स, जो एक्यूट एंगल्स होते हैं, acute angles मतलब from ranging from 0 degree to 90 degree, the value for sin and cos theta will be from 0 to 1। ठीक है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बता देते हैं कि किस लिए। तो हमने मान तो लिया कि ये होता है कि sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, पर ये ऐसा क्यों होता है? सो आई एम गोना शो यू from where does it come and how do you show it so, like I'm just taking the case 1, the values for trigonometric ratios specifically for theta 45 डिग्री, राइट। अब हम थीटा 45 के डिग्री के लिए लेकर चल रहे हैं, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, इट में भी sin 45, इट में भी cot 45, इट में भी tan 45, इट में भी cosec 45, whatever। तो हमने क्या किया, what I have done, I take an isosceles triangle। isosceles triangle की हमको प्रॉपर्टी पता होती है कि isosceles triangle में the two sides are similar, if the two sides are similar then the adjacent angles will also be equal, if the angle theta is there it will be also theta, the angle opposite to equal sides are equal, ये प्रॉपर्टी है अपन की। तो ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया। तो करते क्या, अगर हमने बताया कि अब ये isosceles triangle let the side be A then the BC also be A, और अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं by applying the पाइथागोरस थ्योरम, तो AC स्क्वायर is equals to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। कुछ नहीं किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो इधर से हम AC स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा बाय A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, राइट। कुछ नहीं किया, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कर दे तो 2A स्क्वायर हो गया, सेम्स। तो इधर से AC हमारा कितना आ गया, AC हमारा √2A आ गया, तो ये हमारा √2A आ गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी ले लेते हैं, लेट वी हैव टेकन द एंगल A, सो फॉर द साइन ऑफ एंगल A, साइन फॉर एंगल A व्हाट विल बी AB अपॉन AC, putting the values of AB, AB is A and AC is √2A, it becomes √2A 1/√2। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि साइन 45 जो होगा वो हमारा 1/√2 होगा। अगर सेम हमको पता है कि थीटा थीटा है तो ये थीटा 45 हो जाएगा, लाइक इट्स 90 डिग्री, थीटा एंड थीटा, थीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल्स हम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, तो ये 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा बिकम्स 45। तो हमने 45 डिग्री ले लिया इसको, थीटा को, ये भी 45 हो जाएगा बिकॉज ऑल द टू एंगल्स आर इक्वल। तो इधर से हमने बता दिया कि अगर हम एंगल साइन ए को 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए इज 45 डिग्री, देन इट बिकम्स द एंगल साइन 45 इट बिकम्स 1/√2। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। सिमिलर विद द केस ऑफ कोस ए, कोट ए, टेन ए, अगर हम कुछ भी रखते हैं वो हमारा वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये केस हमारा बना 45 डिग्री के लिए। So now we are taking the case of values for trigonometric ratios standing ranging from 30 degree to 60 degree. ठीक है, so in that case I have taken an equilateral triangle. As you all know the properties of an equilateral triangle, that all the sides are equal, all the angles are equal, each 60 degree respectively, right? तो ये 60 डिग्री हो जाता है, सब 60 हो जाएंगे, ये भी 60 हो जाएगा। I have taken the sides 2A, and what I do, I take a perpendicular AD on BC. If I take the perpendicular AD on BC, the sides will be bisect each other, and it will becomes A as it's 2A, तो हाफ हाफ डिवाइड होकर AA हो जाएगा, राइट। और ये एंगल भी बाइसेक्ट हो जाएगा। इफ द एंगल A is 60 डिग्री देन इट विल बिकम 30 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो कुछ नहीं करना हमको, पहले की तरह जैसा 45 डिग्री में किया था, हमको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम
इसको हम देख लेते हैं कि लाइक एज वी नो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, right? We have given the AB is 2a, it becomes the 4a square, right? AD we have to calculate, and BD is a square. So then AD square is equals to 3a square और AD equals to root 3a. तो ये हमारा root 3a हो गया, right? तो हमारे पास दोनों क्वेश्चंस की कंडीशंस आ गई हैं, 30 डिग्री भी है हमारे पास, 60 डिग्री भी है. सो व्हाट वी हैव डन, आई टेक एंगल बी, द साइन बी विल बी इक्वल टू AD अपॉन AC AB, AD अपॉन AB. Substituting the values, AD is root 3 and AB is 2a. It becomes root 3. As we know the angle B is 60 degree, we can also write this angle B with respect to 60 degree, then it becomes root 3 by 2. sin 60 as we know कि root 3 by 2 ही होता है, और हमने प्रूव कर दिखा दिया कि sin 60 भी root 3 by 2 ही होगा. तो अगर हम इसमें 30 डिग्री लगाना चाहें, हम 30 डिग्री भी लगा सकते हैं. 30 डिग्री हम लेंगे तो a अपॉन 2 हो जाएगा, इट बिकम्स 1 by 2. तो sin 30 की वैल्यू पता है हमको 1 by 2 होती है, वहाँ से भी हम प्रूव कर सकते हैं. तो ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रूव्स हो गए, मतलब पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमने वैल्यूज अगर हमने याद किए हैं तो वो कैसे हुआ, राइट? तो ये हमारा टॉपिक हो जाता है. नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक. हाँ, एक बात जैसे मैं पहले भी नेट पर बता चुका हूँ कि जो साइन और कोस की वैल्यू होगी वो फॉर एवरी एक्यूट एंगल लाइक फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, वो थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगी. कंडीशन हमको पता है कि फॉर एक्यूट एंगल, राइट? So the next topic I am covering is the trigonometric ratios for complementary angles. You all know complementary angles are those the two angles whose sum is 90 degree. They are complementary angles. Like अगर मैं एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेता हूँ ABC, राइट एंगल एट B. अगर राइट एंगल B पर है तो ये जो भी एंगल होगा, लाइक द एंगल A भी थीटा डिग्री, तो जो नेक्स्ट एंगल होगा एंगल C वो 90 डिग्री माइनस थीटा ही होगा. क्यों? एज पर द एंगल्स एंड प्रॉपर्टी द ऑल द एंगल्स आर टेंड्स टू बी 180 डिग्री, then 80 plus 90 plus 90 it will become 180 and plus theta minus theta it becomes 0. तो 180 आना चाहिए, इसी वजह से हम अगर एक को थीटा लेते हैं इसलिए एक को 90 माइनस थीटा लेते हैं. तो इस केस में कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन होंगे? वो एंगल A प्लस एंगल C होंगे, जिनका कम्यूट करके हमारा 90 डिग्री बनता है. सिमिलर विद द केस लाइक कंडीशन फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स दैट द एंगल्स टू एंगल्स whose sums to be 90 degree. Obtuse angles are those whose sum is greater. Obtuse, for obtuse, whose sums are greater than 90 degree, right? And for supplementary के लिए 180. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा. ये थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन थी, तो हम देखते हैं. तो इसको कराने का रीज़न क्या है? बेसिकली हम देखते क्या है कि साइन को अगर हम 90 माइनस थीटा लिख दें तो वो कोस थीटा में चेंज हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? व्हाई डज इट हैपन सो? तो आई एम गोना शो यू कि ये होता क्यों है. नॉट अप्लाई टू द साइन, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द कोस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक, राइट? तो मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, बी पर राइट एंगल है, ठीक है. तो मैंने अज़म कर लिया कि कुछ भी ले लेते हैं. ये हाइट हो गई, h हो गया, ये x हो गया,
ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस आई एम डिनोटिंग विद कैपिटल H एंड द हाइट इज, और वी कैन से परपेंडिकुलर बाय स्मॉल h, राइट। हम एंगल सी ले रहे हैं फॉर एंगल सी, बिकॉज हम तो प्रूव क्या करना है, वो साइन 90 माइनस थीटा है। थीटा लेंगे तो इतना कुछ मीम बनेगा, हमको 90 माइनस थीटा से करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, साइन 90 माइनस थीटा डिग्री, ठीक है। कितना बनेगा, स्मॉल h अपॉन कैपिटल H बन जाएगा। सिमिलरली यदि कॉस कॉस थीटा कितना बन जाएगा हमारा, कॉस थीटा x अपॉन h बन जाएगा, ठीक है। तो हम देखते क्या है, h अपॉन जो h है, h अपॉन h, तो cos थीटा के लिए cos बन जाएगा, राइट। तो cos थीटा है हमारा, वो h अपॉन h आ रहा है, और जो साइन 90 माइनस थीटा है वो अपन स्मॉल h अपॉन h आ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, it will become cos theta. It's the proof. So ये हम किसी भी एंगल के रेस्पेक्ट में, किसी भी थीटा के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं फॉर एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लाइक I'm gonna show you sin 90 minus theta, it becomes cos theta. Cos 90 minus theta, it becomes sin theta. Tan 90 minus theta, it becomes cos theta. And also the case of the reverse, if sec 90 minus theta, it becomes cos theta. And also the converse effect, ठीक है। इसको बताने का रीजन एक ये था कि क्योंकि अभी हाल ही में सीबीएसई के 2020 एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन आया कि इफ tan A equals to cot B, right? If tan A equals to cot B, then what will be the value of A plus B? तो ये हमको दिया था क्वेश्चन पेपर में, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, राइट। देखिए बिल्कुल यही करने वाले हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन tan A equals to cot B as it is given in the question. So what I'm going to do is I'm going to convert the cot B in tan. Tan A equals to tan 90 degree minus B कर सकते हैं ना, बिल्कुल। Like I told you earlier कि हम cot को tan में कर सकते हैं, tan को अगर हम चाहें तो उसको tan को cot में भी कर सकते हैं, तो then it will become the cot 90 degree minus A। तो tan से tan कैंसिल हो गया, A equals to 90 degree minus B, then therefore A plus B equals to 90 degree। तो बेसिक कंसेप्ट हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ नहीं था, देखो कितना सिंपल था, बट वहाँ पर कुछ होगा बच्चों को कि नहीं हो पा रहा है। इट्स सिंपल, बिल्कुल कुछ नहीं था। Also, I forgot to mention a particular topic in this video, that is a point number 4, heights and distances measurement. Right? अब हमको पता है कि मैथमेटिक्स इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, अप्लाइंग टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसका भी तुम्हारी लाइफ में कोई रियल एग्जिस्टेंस रखता होगा। तो as you all familiar with the example given by Hrithik Roshan in his movie Super 30, कि I will show you. If an eagle is here, right, and if a rat is here, right, at the point P O Q R, ठीक है। अगर एक ईगल है, उसको इस रैट को पकड़ना है, तो ईगल कभी इस पॉइंट पर आकर उस पर अटैक नहीं करती, वो हमेशा इस पॉइंट पर आकर अटैक करती है। तो इसमें भी सिंपल हमारा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो रही है। एज इट्स राइट एंगल ट्राइंगल,
right angle at Q, substituting an angle अल्फा से अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये मैं बताऊंगा अभी कैसे कैसे किया। सिंपल है। अब हम इसमें हाइट एंड डिस्टेंसेस लगाएंगे जो ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उसको देखते हैं कि ऋतिक रोशन ने कैसे किया होगा। So before moving forward, I'm gonna show you some basic concepts regarding the heights and distances. That the first term is line of sight. Line of sight का मतलब क्या होता है? I'm an observer, right? I'm an observer, and there is an object P, and I'm looking at it at point P. तो हम जिस एंगल से ऑब्जेक्ट P को देख रहे हैं, then the line adjoining from point O to point P, it's called the line of sight. इसको हम line of sight बोलते हैं। इसको हम horizontal line बोलते हैं, सिंपल। और जो ये एंगल बनता है, the angle between the line of sight and the horizontal angle in the upward scale, right? ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है ना, तो इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और अगर सिमिलर इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ हाइट, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है, उसको एक हाइट पर स्टैंड है, वो कर रहा है, से h इज विद द हाइट एंड द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज हियर, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज observer is seeing the object in downward direction, like I am standing in front of a tower and I'm seeing you in behind in downward na. If I am taking the downward angle, it will become the angle of depression. सिंपल बेसिक से कंसेप्ट है, राइट? अगर एंगल ऊपर अपवर्ड साइड में जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और एंगल नीचे की साइड जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। जस्ट लाइक अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया ईगल वाला, तो ईगल में एंगल नीचे की साइड बन रहा है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, राइट? Sir, in order to clear you more, I'm giving you an example. मेरे टाइम पर क्या होता था कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, उसमें इन ऑर्डर ऑफ 4 मार्क्स। तो उसमें क्या दिया था, एक क्वेश्चन दिया हुआ आता था, उसमें उनको वैल्यूज बताए जाते थे। तो एक क्वेश्चन मैं ऐसे कुछ सॉल्व कर रहा हूँ, राइट? अभी जस्ट लाइक एज यू ऑल नो, आवर कंट्री हैज बीन हिट हार्ड बाय द सर्टेन साइक्लोन्स, लाइक निसार हो गया, अम्फन हो गया। तो उस पर एक अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, अगर मैं सोचता हूँ उस नज़रिए से, तो ये आ सकता है कि एक ट्री था, ठीक है, लाइक AD was the height of the tree, but due to the cyclone the tree got broken from that point and it became the hypotenuse, right? P, D and C. तो अगर हमको पूछा गया क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, तो हम इसको कैसे करेंगे? इसमें भी कुछ नहीं करना, हमको पता लगे कि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट डी पर है। तो हमको अगर इन ऑर्डर टू फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसमें सिंपल हम इसमें हाइट का लगा है, राइट? हम इसमें हाइट ही तो देख रहे हैं ट्री की, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो लाइक ये एक थीटा दिया गया है, एंगल किसी भी एंगल पर दिया गया है। अगर हम इसमें क्या निकाल देंगे, लाइक टेन थीटा। हम ज़्यादातर हाइट एंड डिस्टेंसेस में टेन का फॉर्मूला इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमको हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं होता, हमको बेस और हाइट ही पूछी जाती है, लाइक हाइट फॉर h, राइट, एंड डिस्टेंस फॉर d, और यू कैन से x। तो डिस्टेंस और हाइट में हमको h और d और x ही निकालना है, तो हम उसको हाइपोटेनस का कुछ काम नहीं होता, बस उसको हम निकाल लेते हैं ताकि वो हमको आगे अगर कोई भी अननोन वैल्यू उसमें हमको हेल्प करती है, राइट? अगर इसमें हम क्या करें, h/x कर लें, h/x कर लें, तो ये डेट विल बी द हाइट ओनली टू द ब्रोकन ट्री, ओनली ऑफ द ब्रोकन ट्री, ठीक है? ये इसकी हाइट है ब्रोकन ट्री की। पर अगर हम देखें ओरिजिनल हाइट तो इसकी ये थी ना, लाइक अभी ये टूटा हुआ था, पर जब ये टूटा हुआ नहीं था तो ये ऐसे खड़ा था। तो वॉट एवर बी द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, लाइक ये हाइपोटेनस है,
तो ये हाइपोटेनस ऐड होकर उसकी एक्चुअल लेंथ बन जाएगी, है ना, क्योंकि ये हाइपोटेनस है। अगर हम इसको ऐसे खड़ा कर देंगे तो डेट विल बिकम द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री। तो ऐसे भी करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। ये तो हाइट पर हो गया, एक डिस्टेंस पर देख लेते हैं। से an observer at P looking at the two poles of the same height, right? Say the distance to be total 200 meter and the distance I have to make the pillar equal height, right? ये h हो गया, height को हम h से डिनोट कर लेते हैं। सपोज करें tan 60 हो गया, ये हमारा tan 30 हो गया। अगर ये h है तो ये भी h हो जाएगी, राइट। अगर मैं इसको लेट कर लूँ कि ये इतना डिस्टेंस x है, x मीटर, देन इट विल बिकम 200 माइनस x, राइट। सिंपल सिंपल है बिल्कुल। तो अगर हम इसको डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर हम सपोज करें नेट हमने हाइट कर ली 50 मीटर है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द लेंथ हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने बताया कि tan का लगा लेते हैं। tan इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और बेस में ही निकालना होता है क्वेश्चन को। tan 60 विल बिकम h अपॉन x, h इज 50 मीटर एंड x tan 60 इज √3, ठीक है। x हमारा कितना बन गया, 50 बाय √3 मीटर। तो ये हमारा इतना जो है वो हमारा 50 बाय √3 मीटर्स आ गया। तो सिंपली अगर ये वाली डिस्टेंस निकालना है तो कुछ नहीं करना, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 200 माइनस 50 अपॉन √3 मीटर कर लेंगे। कुछ नहीं, एग्जामिनेशन में इतनी डिमांड नहीं होती कि हम वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज आल्सो एक्सेप्टेबल। तो अगर हम इतना भी छोड़ देंगे तो कुछ इसमें कोई गलत नहीं है। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मेरे प्री बोर्ड में पूछा गया था कि एक सन के एल्टीट्यूड से था वो कुछ, राइट। उसमें था क्या कि एक सन है, वो अपनी कास्ट कर रहा है, कास्ट इज शैडो विद द लेंथ ऑफ 3√3 मीटर, ठीक है। और उसकी जो शैडो बन रही है, इसकी हाइट है, लेट सपोज हमको हाइट ही निकालनी है, और ये इसकी जो मतलब शैडो बन रही है वो 3 मीटर है, ठीक है। तो इसमें अगर हमको हाइट भी कुछ नहीं निकालना, हाइट की जरूरत ही नहीं है हमको, राइट। वी हैव टू कैलकुलेट आउट द थीटा। तो इसमें हम थीटा कैसे निकाल सकते हैं, राइट। हमको पता है कि हमको इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें हमको हाइपोटेनस दिया गया है, इसमें हमको ये बेस दिया गया है। तो हम इसमें अब हमको ऐसा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचनी पड़ेगी जिसमें हमारे पास हाइपोटेनस भी हो और हमारे पास बेस भी हो। तो वी कैन सिंपली अप्लाई द cos थीटा, इट विल बिकम द 3 upon 3 by √3 meter, 3 for 3, it becomes 1 by √3 meter cos theta, and we know that the √3 value 1 by √3 थीटा में नहीं होता कुछ भी, तो हम इसको सिंपल इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं हम थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ माइनस 1 by √3 मीटर। सिंपल है बिल्कुल, राइट। So that's all now for today. I hope you like our video, and if you like our video, do share with your friend or members so that they can also take the advantage and the benefit from it. So at last but not least, I would like to end my video by an adage given by an eminent personality that seems to be like this: if you worry about the difficulties in mathematics, I can assure you mine are still greater. That personality was Albert Einstein. Also, in the upcoming video, I will be discussing all the important questions that has been asked in the previous question paper of CBSE class 10 mathematics. So, tab tak, stay motivated, stay healthy, stay fit. Thank you. Jai Hind.